ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका क्रॉस वगैरह तो कमजोर नहीं रहेगी। बहरहाल आप इसके तो जितने भी एमसीक्यूज करेंगे वो कम है, ये जितने भी एमसीक्यूज टॉपिक के कर लें वो कम। चैप्टर नंबर 8 खत्म हो गया। चैप्टर 8 के बाद आपसे बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा दें पूरा चैप्टर 8। कौन रिवाइज कराए? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की स्टेटमेंट बताओ। These beings are responsible for development of individual at the time of these are responsible for development of individual at the time of gamete formation. They segregate and pass into gamete in such a way that each gamete contains only one gene of particular character and is said to be pure. ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट बताओ। When two pairs of contrasting tracks are brought together in exponent generation, they first segregate and assorted alleles in each pair are independent of each other. ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट्स डिफाइन करो। When more than two alternative forms alleles for a trait are present in any one locus, they are called multiple alleles. ठीक है, दे आर मल्टीपल एलिमेंट्स। अच्छा ये बताओ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताओ। इंडिपेंडेंट इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट बताओ। It is a phenomenon in which gene pair is dominant. It is a phenomenon in which gene pair is dominant over the other, and the result. Neither of the gene is dominant over other. Neither of the. आप अपने कामों में ना लगे, जो कह रहे हैं सुनिए। मेरे का क्या नहीं ले रहा हूँ, आपको सुनवा रहा हूँ। अपने जो लोग काम में लगे हैं, मैं अपने काम काज बंद कर दूँगा। It is a phenomenon in which neither of the gene is dominant over the other, and the result is blend of two. ठीक है, कोडोमिनेंस डिफाइन करो। It is a phenomenon in which neither of the gene is dominant over the other, but appear in offspring together at the same time without masking effect of each other. ठीक है, कोडोमिनेंस हो गई। लिंकेज डिफाइन करो। The tendency of genes in a chromosome to remain together during inheritance causes. एपिस्टेसिस डिफाइन करो। It is a type of genetic interaction in which It is a type of genetic interaction of two or more gene pairs in which it is a type of genetic interaction of two or more gene pairs in which alleles of one gene pair mask the effect of another gene pair, and the expected phenotype does not appear at all. ठीक है, and the expected phenotype does not appear at all. ठीक है, इसके बाद आपके पास multiple phenotypes possible. the production of multiple phenotypic effects caused by a single gene called pleurome. ठीक है, color blindness define करो। It is a self-linked inheritance disease in which a person becomes unable to perceive one or more colors, and he usually finds distinguishing red from green. You usually find difficulty in distinguishing red from green. It is a self-linked inheritance disease in which blood fails to clot after an external or internal injury, or it clots very slowly. ठीक है, और it clots very slowly. ठीक है, शाबाश। एक बात याद रख लीजिएगा, इस एक बच्चे से मैं पूछकर तो पूरी क्लास का इंप्रेशन नहीं ले रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो गया। ये बात ध्यान में रखिए, कतन धोखे में नहीं हो, बातों को याद नहीं। आपको सुनवाया है और मैंने जानबूझ के इनसे सुना इसलिए कि अगर ये नहीं बताएगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा।
अगर कोई बहुत बेसिक मैंने आपसे सवाल किया, आप सबसे कह रहा हूं संडे तक का टाइम है, चैप्टर 8 रट जाना चाहिए, सबसे कह रहा हूं, ठीक है। चैप्टर 8 इस संडे तक याद थॉरोली हो जाना चाहिए, एक एक लफ्ज पर लफ्ज। चैप्टर 8 के बारे में बात हो गई है, किसी के ध्यान में भी ये बात नहीं आनी चाहिए। आपको क्या बताऊं, हम अपना अच्छा और बुरा खुद करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, लिख के देने के लिए तैयार हूं, आप बगैर पढ़े मेडिकल कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकते। आपको सिर्फ इतनी छोटी सी बात बता दूं, चैप्टर 8 आपने कर ली है, अभी आप एक काम नहीं करिएगा, एंट्री टेस्ट के पेपर्स खोलिएगा और एंट्री टेस्ट के क्वेश्चन करना शुरू करिएगा। आप कहेंगे हमने तो पढ़ा ही नहीं है चैप्टर 8। अब कहेंगे ये क्या सवाल आया, पूरा एक एक पेज का सवाल आया हुआ है और 40 सेकंड तो क्या 10 मिनट भी नहीं होता, आपको देख के हैरत हो। यानी कि आपको आप बाबा इंटर की तैयारी कर, इंटर के अंदर आपके पास सिंपल सवाल होते हैं, एमसीक्यूज वगैरह, और वहां पे आपके पास इतने टिपिकल एमसीक्यूज होते हैं, वहां पे हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। बात समझ में आ रही है आप? और आप जरा गौर करें, मैं आपको सबसे पहले कह रहा हूं कि अपने आप को पहले इंटर के तो एलिजिबल बना लें, ठीक है। कि आपसे सवाल किया जा रहा है और आप जवाब नहीं दे, तो पहले आप अपने आप को इंटर के लिए तो एलिजिबल बना लें। आप सबको ये बार बार ही बात करें, पढ़ लें, आपने पढ़ा हुआ होगा तो अगला स्टेप आगे जो है तो फिर उसके बाद कर सकते हैं, बगैर उसके नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इतने पेडिग्री ट्री, इतने डिफरेंट अंदाज से पूछते हैं कि आपके पास आप अच्छा खासा टाइम लग जाता है जवाब देने। अभी आपने सिर्फ बेसिक्स की। चले इसके बाद आइए फर्दर, चैप्टर 8 के बाद बात करने जा रहा हूं आपसे चैप्टर 1 होम्योस्टेसिस के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 है आपका होम्योस्टेसिस। क्रोमोसोमल थ्योरी नहीं बताई, देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी जब आपने चैप्टर 8 पढ़ लिया तो कोई मसला ही नहीं है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, इसके 4 पॉइंट्स। इसको सटन्स थ्योरी भी कहते हैं, 1 2 3 और ये 4, इसके 4 पॉइंट्स है टोटल। इसका एक पॉइंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जो मैंने अभी इनसे पूछा है रिस्पॉन्स देने में। इसका दूसरा पॉइंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ध्यान में आएगा सर, फिर इसको अलग से थ्योरी का दर्जा दिया गया है। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपसे कहा गया है कि गैमीट्स बनने के दौरान जीन्स सेग्रीगेट हो जाते हैं। सटन्स थ्योरी क्या कहती है? सटन्स थ्योरी कहती है कि गैमीट्स बनने के दौरान क्रोमोसोम्स अलग अलग पोल्स पे खींच लिए जाते हैं। जब गैमीट्स बनने के दौरान क्रोमोसोम्स अलग अलग पोल्स पे खींच लिए जाते हैं तो इनका अपने अपने पोल्स पे जाना, ये सेग्रीगेशन। इनका अपने अपने पोल्स पे वापस चले जाना, ये दरअसल कहला रहा है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन या सेपरेशन कहला रहा है, ठीक है। और रही बात ये कि अगर ये वाली बात हम कहें कि मेंडल साहब ने की, तो मेंडल साहब के जमाने में तो माइटोसिस मियोसिस का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। उन्होंने बात वही की है, बस उन्होंने उसको क्रोमोसोम्स के ऊपर रखा। दूसरे पॉइंट में सटन्स थ्योरी क्या कहती है कि अगर फर्ज करें यहाँ पे टी है और यहाँ पे वाई है, तो ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। एक मिनट हुई है।
जो बात आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में समझाई गई है कि ये वाला जीन पेयर इससे इंडिपेंडेंट होता है, ये वाला जीन पेयर इससे इंडिपेंडेंट होता है। सटन थ्योरी में क्रोमोसोम के ऊपर रखकर ये बात की गई। A character is independent of another character, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट है। बस वही बात जो मेंडल साहब की टीम यहाँ पे रिपीट की गई। तीसरा पॉइंट, सटन थ्योरी कहती है कि जायगोट कैसे बनता है। जायगोट बनता है फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट्स से। अब ये तो बात बड़ी सिंपल है, थ्योरी में तो आ ही नहीं सकती वाली बात। अब क्या क्या है ये, क्या ये रहे कि जब स्पर्म जो है वो आके फ्यूज होता है जायगोट से और अपना न्यूक्लियस दाखिल करता है, अपना न्यूक्लियस दाखिल करता है ओवम के अंदर, तो दरअसल तमाम का तमाम जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और स्पर्म का जो साइटोप्लाज्म है वो जायगोट के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता। जब न्यूक्लियस दाखिल हो गया इसके अंदर, अब ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे। जब दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो देखें ओवम के साइटोप्लाज्म का कितना ज्यादा रोल है, लेकिन स्पर्म के साइटोप्लाज्म का रोल ही नहीं, क्योंकि तमाम की तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में डिसाइड करती है। इसके अलावा चौथा पॉइंट, डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स के पास 2 कॉपीज होती हैं हर कैरेक्टर के जीन्स की। मैंने ये नहीं कहा हर जीन्स की, मैंने कहा हर कैरेक्टर के जीन्स, दोनों में बड़ा फर्क है। और हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स के अंदर 1 कॉपी मौजूद है। ठीक है, हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स के पास सिर्फ और सिर्फ 1 कॉपी जीन्स की मौजूद है और डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स के पास 2 कॉपीज। फंजाई के मेंबर्स के बारे में बात करूं तो किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स हैं दे आर जेनेटिकली हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, वो जेनेटिकली हैप्लॉइड इन नेचर। तो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स के पास 2 कॉपीज हैं और हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स के पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉपी मौजूद है। ठीक है, ये सटन्स थ्योरी नोट करना चाहे कर सकते। मैंने आगे चैप्टर 6 8 में भी नहीं है, चैप्टर 6 का हिस्सा है। मैंने चैप्टर 6 में इसलिए नहीं पढ़ाई है कि आपने अगर ये मेंडल लॉ कर लिया तो ये सेग्रीगेशन एंड डिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पॉइंट तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 6 में बगैर चैप्टर 8 पढ़ाए आपको ये 2 पॉइंट समझाए नहीं जा सकते।
चलिए इसके बाद आइए चैप्टर होम्योस्टेसिस के बारे में बात करूं तो जो आपकी जरूरत होम्योस्टेसिस को डिफाइन करते हैं the mechanism of maintaining constant internal environment of the body called homeostasis. वो मैकेनिज्म जिसके जरिए बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता है उसको नाम देते हैं हम होम्योस्टेसिस। इंटरनल एनवायरनमेंट कौन बनाता है? इंटरनल एनवायरनमेंट बनाता है आपके पास ब्लड। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय व्हाट? एक्चुअली फॉर्म्ड बाय ब्लड। इसमें आपको 100 से ज्यादा मिसालें दी जा सकती है, चंद मिसालें मैं आपको दे रहा हूं। ब्लड इंटरनल एनवायरनमेंट बना रहा है। हमारे ब्लड में पोटेशियम आयंस मौजूद होते हैं, इनकी रेंज होती है 3 to 6। इसको मेंटेन करना जरूरी है। हम अपनी डाइट में जितनी भी चीजें खाएं उसमें किसी न किसी में पोटेशियम जरूर मौजूद है। आलू खाएं उसमें पोटेशियम है बहुत ज्यादा, बनाना खाएं उसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा है। अब इंसान खाते वक्त ये नहीं सोच रहा होता क्या करते हैं कि इंसान क्या खा रहे हैं, कम खाए ज्यादा खाए। अगर हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी हो रही होती है तो हमारी किडनीज क्या करती हैं? पोटेशियम को एक्सक्रीट होने से रोक देती है। और अगर पोटेशियम ज्यादा हो रहा होता है तो हमारी किडनीज क्या करती है? उस पोटेशियम को बॉडी से एक्सक्रीट कर देती है। लेकिन ये जो रेंज है 3 to 6 हमारी बॉडी क्या करती है? इसको मेंटेन करके। सिमिलरली अगर मैं ब्लड में कैल्शियम के बारे में बात करूं, हमारे ब्लड में अगर कैल्शियम कम हो रहा होता है तो हमारी बॉडी इसको रेगुलेट कैसे करती है कि एक तो बॉडी से उसका एक्सक्रीट होना कम कर देती है और दूसरा जो हमारी हड्डियां मौजूद हैं उससे कैल्शियम जो है वो ब्लड में लेकर आ जाता है। कैल्शियम हमारी बॉडी में 8 से 10 के दरमियान होता है। तो या तो बॉडी से उसकी एक्सक्रीशन कम कर देगी या हड्डियों से कैल्शियम प्रोवाइड कर देगी ब्लड। और दूसरा तरीकेकार क्या है कि अगर बॉडी में कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या करती है? किडनीज के जरिए या इंटेस्टाइन के जरिए बॉडी से इसको एक्सक्रीट करवा दी। किडनीज या इंटेस्टाइन के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट करवा दी। इंटरेस्ट के लिए छोटी सी मिसाल बता रहा हूँ। तकरीबन 4-5 साल पहले इंटीरियर से मुझे सवाल आया था, टीवी पे खबर चली, किसी न्यूज चैनल पे 2 बच्चों को रोते हुए दिखाया गया। तकरीबन उनकी उम्र 10-12 साल थी। क्यों रोते हुए क्यों दिखाया गया? उनकी भैंसें जो है वो बह गई थी पानी में। सैलाब इतना सख्त है, भैंसें बह गई। क्यों रो रहे हैं भाई? इसलिए रो रहे हैं कि डेली तकरीबन 40 लीटर मिल्क उनका दोनों बच्चों का इंटेक, 40 लीटर। और उनकी जिसामत बता रही थी कि वाकई ऐसे क्यों। अब वो कहते भैंसे तो हमारी सैलाब में बह गई, अब हम कहां से पिएंगे? कहने घर वालों की जान बच गई, लेकिन अब हम ठीक है मिल्क इंटेक कैसे रखेंगे? तो फिर थोड़ी देर बाद खबर आई कि कहते हैं कि आप फला पॉलिटिशियन ने जो है वो 2 भैंसे उनको गिफ्ट करके भिजवाई ताकि बच्चे जो है। अब आप मुझे बताएं कि अगर 40 लीटर इंटेक हो, 40 लीटर, तो आप मुझे बताएं जिससे मैं कैल्शियम का आलम क्या होगा? हर चीज की ज्यादती नुकसानदेह, किसी चीज की कमी नुकसानदेह है। ठीक है,
तो कैल्शियम जिस्म में अगर इतना ज्यादा होगा तो बताइए बॉडी इसको एक्सक्रीट करेगी नहीं करेगी? हालांकि कैल्शियम काम की चीज, हड्डियां मजबूत होती, लेकिन उसका ज्यादा होना भी नुकसानदेह है, लेकिन उसका ज्यादा होना भी नुकसान है। चले, तो ये मैंने आपको कैल्शियम की मिसाल दी। तीसरी मिसाल सुनिए जरा। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें रेड ब्लड सेल की मखसूस तादाद है 52 लाख होती है। और हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में कितना होता है? हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, एक आम इंसान का होना चाहिए 12 से 14 के दरमियान। आपको सुन के हैरत होगी, कुछ मरीज होते हैं वो कहलाते हैं टाफ, टाफ के मरीज, TOF, टाफ, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। आपको याद नहीं रखना, इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं। जब वो अस्पताल आते हैं, दिल के अस्पताल आते हैं, तो वो काफी नीले हुए होते हैं, साइनोज हुए, ठीक है, काफी नीले हुए होते हैं, साइनोज हुए। तो उनका जब हीमोग्लोबिन हम कराते हैं, पता है कितना होता है? 18 या 20 होता है। उनका खून ज्यादा हुआ होगा। नीलेपन की वजह कुछ और है, उनके दिल में ब्लड की मिक्सिंग हो रही होती है। लेकिन अब आप सोचिए उनका हीमोग्लोबिन कितना होता है? 18। उनको अस्पताल बुला के उनका खून निकाल के, खून ऐसे निकाला जाता है जैसे खून चढ़ाने के लिए निकाला जाता है किसी इंसान में से, तो बैग में भर के बैग फेंके जाते हैं। टॉफ के मरीजों के, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के मरीजों, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर ताकि वो क्या हो कि जो 18-20 हीमोग्लोबिन है ये भी नुकसानदेह है, ताकि इस रेंज के अंदर आ जाए, कम हो, ठीक है। और इसी तरह अगर किसी का कम हो जाए हीमोग्लोबिन, तो कम होकर क्या होगा? किसी का हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए, तो हीमोग्लोबिन कम होने पे क्या होगा? उसको खून चढ़ाना पड़ेगा। किसी का हीमोग्लोबिन 6 है और वो कह रहा है कि भाई मेरा तो चक्कर आ रहे हैं मुझे, तो उसको खून चढ़ाना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी हर चीज को विद इन द रेंज रखती है, इसको रेंज में रखने को कहते हैं होमियोस्टेसिस। सर वो ब्लड में कोई ऐसी डिसीज है कि ब्लड फेंकना ही पड़ रहा है? आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है कि असल में वो जो ब्लड आपको फेंकना पड़ रहा है कि आप किसी को चढ़ा नहीं सकते, तो रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन भी मुतासर होता है, इसीलिए कहते हैं कि वो किसी काम का क्या किसी और को चढ़ा, वरना तो उसपे टीवी पे ऐलान हो रहा होता है कि हाँ भाई जितने शहर में टाफ के मरीज हैं सब आ जाए अपना अपना ब्लड डोनेट करें। चलें, तो अब किसी भी चीज को, अब ब्लड के अंदर इतने कंटेंट्स हैं, उसकी पीएच है, प्लस आयन है, CO3 माइनस आयन है, क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है, इनका रेंज मेंटेन रखा जाता है। रेंज मेंटेन रखने का नाम क्या है? विद इन द रेंज मेंटेन रखने का नाम कहलाता है आपके पास होमियोस्टेसिस, ठीक है। विद इन द रेंज नाम रखने, रेंज को विद इन द रेंज चीजें रखने का नाम होमियोस्टेसिस। अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? किडनीज का है, लिवर का है। किसी को फर्स्ट करें जॉन्डिस हो गया, तो आपको बताओ जॉन्डिस क्यों होता है? जॉन्डिस इस वजह से होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जिन रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन 120 दिन हो जाता है, तो जब वो स्क्रीन से गुजर रहे होते हैं स्क्रीन उसको पकड़ लेती है, और जब स्क्रीन उससे पकड़ रही है, आपको पता है एक रेड ब्लड सेल की सरफेस पे कितने हीमोग्लोबिन होते हैं? 4 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं। 280 मिलियन का मतलब 2800 लाख, और वो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से जुड़ता है, सोचिए जरा। और कितने रेड ब्लड सेल ऐसे हैं? 52 लाख है पर क्यूबिक मिलीमीटर। लीटर का यूनिट कितना छोटा वाला है? पर क्यूबिक मिलीमीटर। आप सोचो हमारी बॉडी के अंदर कितना ज्यादा ब्लड है, ठीक है। कई लीटर, मैं क्या चाहता हूं कि जब उनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है तो उनमें से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, उससे बनता है बिलिरुबिन।
जिन लोगों को जॉन्डिस होता है तो उसमें क्या होता है कि लिवर अपना काम करना छोड़ देता है और बिलिरुबिन की जो सिंथेसिस है, बिलिरुबिन की जो फॉर्मेशन है वो डिलीट हो जाती है और वो बॉडी से एक्सक्रीट होने के बजाय ब्लड में रह जाता है। जब बॉडी से एक्सक्रीट होने के बजाय वो ब्लड में रह जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपको जॉन्डिस हो जाएगा, जॉन्डिस नजर आएगा। ठीक है, इस तरह लिवर भी हमारे जिसम में होम्योस्टैटिक ऑर्गन है, हमारी स्किन भी होम्योस्टैटिक ऑर्गन है, हमारी बॉडी में बहुत सारे होम्योस्टैटिक ऑर्गन। होम्योस्टेसिस के अंदर देखें हमने आपसे 3 बातें करनी है। एक बात करनी है एक्सक्रीशन की, एक बात करनी है हमने ऑस्मो रेगुलेशन की, और एक बात हमने करनी है थर्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन, ये 3 बातें आपसे करनी। एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन की अगर बात की जाए तो एक्सक्रीशन से असल मुराद है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स की एक्सक्रीशन। ठीक है, इससे असल मुराद है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी एक्सक्रीशन। चलें फिर हम यहाँ से डिटेल में बात करना शुरू करें। भूल जाता है, पहचान नहीं होता, हेपेटिक इनकेफ में गया, हेपेटिक इनकेफ को रेक्टिफिकेशन लिवर का काम है यूरिया फॉर्मेशन। अगर ब्लड में अमोनिया की बढ़ जाए और यूरिया फॉर्मेशन लिवर रोक दे, यूरिया अमोनिया ब्रेन में जाके ऐड करती है तो उससे जो है वो मतलब